Good morning, students. In the last video of class 12 business studies, we discussed the chapter number 8, that is controlling. Under this chapter, we discussed what is controlling, what are the features of controlling, what are the advantage of controlling, as well as the relationship between the first function of the management, that is planning, and the fifth function of management, that is controlling. Planning and controlling, both function of the management are forward looking as well as backward looking. You know very well, controlling is a process in which we measure the actual performance against the standard, calculate deviation, and taking corrective action to achieve predetermined objective of the organization. Today we will move to the important topic of this chapter, that is process of controlling. In the last video we discussed there are basically 5 steps of process of controlling. The first one is setting performance standard. Number 2, measurement of actual performance. Number 3, comparing actual performance with the standard. Number 4, analyzing deviation. And number 5, taking corrective action. So the whole controlling process included 5 steps, and with the help of these 5 steps we can easily control the organization activity in any organization. The first step of the process of controlling is setting performance standard. You know what is a performance standard? किसी भी एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए बेसिकली हम एक स्टैंडर्ड तय करते हैं, यानी बेंचमार्क तय करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं. ये स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, बट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना इजी होता है, बट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, उतना ज़्यादा ईजी टास्क नहीं होता. सो व्हेन वी सेटिंग अ qualitative standard for any activity, so it must be clear and simple, by which we can easily calculate, easily find out the actual performance of any organization. As well as the most important part of the standard is a standard should be a flexible and it should be revised regularly, because you know very well the environment and future condition are dynamic, it changes regularly. So if there are any kind of favorable changes in the environment, so the standard can be increased, but if there is a negative changes in the environment which are adverse effect in our organization, so we can reduce our standards, because a standard is fixed for the future operating activities. If there is any positive situation occur in the future, so the standard should be increased according to these conditions. And on the other hand, if the situation are adversely affect the business organization, so in this situation standard should be revised, should be minimized according to the situation. So the second step of controlling process is that measurement of actual performance. Once the standard are fixed, the next step is to measure the actual performance. Generally, it is conducted by the manager to analyze the overall efficiency level of the employees. While measuring the performance, objective and reliable methods should be used, such as sample checking, preparing reports, personal observation. जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करें तो स्टैंडर्ड जो हमने क्लियर कर लिए उनको ध्यान में रख के हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ही
एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल को इंडिकेट करता है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेथड्स जिससे हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि सैम्पल चेकिंग, जिसे हम लोग रैंडम चेकिंग भी करते हैं। बीच बीच में आप सैम्पलिंग वे में ऑर्गेनाइजेशन में जाइए और टारगेट को एनालाइज करिए कि हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितना % सक्सेस हो चुके हैं, कितना % हमने सक्सेस प्राप्त की है। या फिर आप प्री डिटरमाइंड पीरियड डिसाइड कर लीजिए, उसके लिए रिपोर्ट्स बनाइए, दैट इज़ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स, कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल के स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव रखा है, हम आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ हम उस ऑब्जेक्टिव के कितने करीब आ चुके हैं। एंड नंबर थर्ड, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टेक्निक टू मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि पर्सनल ऑब्जर्वेशन से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एकदम एक्यूरेट होगी। सम सिचुएशन हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट्स बन के आती है वो सिर्फ कागज़ों पे सही होती है, बट एक्चुअलिटी में उसका कोई लेना देना नहीं होता। सो व्हेन वी आर मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस should be based on the standard. Second important things, actual performance depicts the overall efficiency level of the employees. Actual performance measurement can be done by the sample checking, preparing reports and personal observation. Measurement should be done after the task is completed is a very important part, because जब काम पूरा हो जाए तब हमें मेजरमेंट करना चाहिए। अगर काम प्रोग्रेस में है तो हमें उसका मेजरमेंट नहीं करना चाहिए। अगर कोई वर्क चल रहा है, उस वर्क के बीच में अगर मेजरमेंट करेंगे तो एक तरह से वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट करेगा। तो एक तरह से वो टाइमली वर्क ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा, बट रिसोर्सेज काफ़ी वेस्ट हो जाएंगे। वहीं अगर हम और बात करें कि मेज़रमेंट टास्क कंप्लीट होने के बाद इसलिए भी ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है क्योंकि तब आपको एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप मिड में या काम करते वक्त अगर चेकिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। However, sometimes performance can be measured during the performance to ensure regular control over the activity. Usually in large organizations, certain pieces are checked at such random instead of checking the whole lot. This is called sample checking. You know very well कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी चेक करने के लिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेक करने की बजाय क्वालिटी चेक करने के लिए हम जब प्रोडक्शन होता है तो उसके बीच में सुपरविज़न जाता है और रैंडम वे में किसी एक प्रोडक्ट के पीस को उठाता है और चेक करता है कि क्या वो हमारे दिए गए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। सो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट इज़ डिपेक्ट्स द ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो किसी भी टास्क, किसी भी एक्टिविटी की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए बहुत ही ध्यान से हमें उसको मेज़र करना चाहिए, क्योंकि अगर सही मेज़र हुआ तो बढ़िया है, अगर मेज़रमेंट सही नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम जो कंट्रोलिंग के लिए स्टेप फॉलो करेंगे वो हमें एक्चुअल रिज़ल्ट, एक्चुअल कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं करने देगा। द नंबर थर्ड स्टेप इज़ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। इट इज़ अ वेरी ईजी एंड पॉपुलर steps of controlling process, and it is must followed by every employees कि जब हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए, एम्प्लॉयज़ के एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर लिए, सो नाउ वी विल मूव टू द थर्ड स्टेप, द कैलकुलेट डेविएशन। डेविएशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। यानी हमने क्या रिज़ल्ट डिज़ायर किया था, क्या सोचा था, क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या एक्चुअल रिज़ल्ट आया है, उनके बीच में कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। कंपैरिजन बिकम्स ईजियर व्हेन स्टैंडर्ड आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। यही मैं बाद में शुरू में बताता है, स्टैंडर्ड जो होते हैं अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं तो हम ईज़िली डिस्कस कर सकते हैं, ईज़िली उसको हम मेज़र कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव टर्म्स को हम ईज़िली मेज़र नहीं कर सकते। अगर हमारी स्टैंडर्ड है कि हमें वन वीक में या 1 मंथ्स में हमें 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है या 5000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, उतना गुड्स एंड सर्विस अप्लाई करना है, सो इन दिस सिचुएशन में
हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र किए कि सपोज़ हमने 450 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं इन 1 वीक और 4500 इन 1 मंथ, वॉट एवर. सो द डेविएशन इज़ standard minus actual performance. The comparing actual performance with the standard says कि standard था 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, बट हमने कितना प्रोड्यूस किया 4500. सो हमने अभी तक 500 यूनिट्स की शॉर्टेज है, यानी डेविएशन. अब डेविएशन तो पता चल गया कि हमने 500 यूनिट्स कम प्रोड्यूस किया है. इतना क्लियर हुआ? ओके. मीन्स पहले स्टेप में हमने डिसाइड किया कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्या है. उसके बाद हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया कि हम एक्चुअलिटी में हमने क्या क्या गोल अचीव किए, मतलब कितना यूनिट प्रोड्यूस किया. उसके बाद उनके बीच में कंपैरिजन किया, यानी डेविएशन कैलकुलेट किया. अब नाउ द फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग. अगर ये पार्ट हम अच्छे से नहीं करेंगे तो एक तरह से हम कंट्रोलिंग को कहते हैं, कंट्रोलिंग इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग का जो एम है, कंट्रोलिंग जिसके लिए किया जाता है, जिसके लिए इतना टाइम इतना एफर्ट लगाया जाता है, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा. सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल कंट्रोलिंग प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन एनालाइजिंग डेविएशन. डेविएशन को एनालाइज करना कि अगर हम 500 यूनिट शॉर्ट प्रोड्यूस किए हैं, हमारा टारगेट था 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने का, बट वी कुड ओनली प्रोड्यूस 4500. तो वाई वी आर प्रोड्यूस ओनली 4500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हो पाया टाइम के अंदर. So analyzing deviation under this step, deviation is a key area of business need to be attached on an urgent basis as compared to deviation in certain insignificant areas. There is a need to determine the acceptable range of deviation in all operational areas. ये line, there is a need to determine the acceptable range of deviation in all operational areas. अब ये क्या है सर? हमने स्टेप 1 में डिसाइड किया हम 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, 5000. स्टेप 2 में एक्चुअल परफॉर्मेंस आई हमारी 4500. स्टेप 3 में पता चला कि 500 यूनिट्स की शॉर्टेज है. अब स्टेप 4 में हम इस डेविएशन को एनालाइज करेंगे कि ये 500 में से कितना यूनिट शॉर्ट होना एक्सेप्टेबल है. एक्सेप्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर हम एक महीने कॉन्टिन्यूटी काम कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई होंगी जिसके बारे में हमने पहले से नहीं सोचा हो, क्योंकि जनरली हम जब भी कोई टारगेट रखते हैं तो सब पॉजिटिव लेके चलते हैं. सपोज़ एक महीने के प्रोडक्शन आवर में कुछ लेबर वर्क छोड़ के चले गए, जैसे आपके यहाँ लेबर की कमी हो गई, आपको रॉ मटेरियल कभी किसी दिन टाइम पे नहीं मिल पाया, ये भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. हो सकता है कि आपकी मशीनरी ख़राब हो गई होगी. हाँ सर. ये भी हो सकता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा वेस्ट हो गए, जिससे आपको रॉ मटेरियल्स की कमी हो गई हो. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक गई होगी, हो सकता है. देखिए बहुत सारे रीज़न है ना. आपने एक महीने के अंदर प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन हमने सोचा 5000 यूनिट, सब पॉजिटिव लेके चल रहे थे. स्टेप 2 में हमने प्रोड्यूस किया 4500 यूनिट्स, यानी हमने स्टेप 2 में पता किया हम 500 यूनिट का डेविएशन है. तो हम स्टेप 2 में पहले ये डिसाइड करेंगे कि कितना एक्सेप्टेबल डेविएशन, एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन मतलब 500 यूनिट में से कितना हम एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है यार, इतना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, 500 क्यों हुआ. मीन्स अगर हम सारी सिचुएशन को स्टडी करें, सारी सिचुएशन मीन्स कि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक गई हो, मैन पावर अवेलेबल ना हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो. सो इन सब को एनालाइज करने के बाद हमारे मैनेजर डिसीज़न लिया कि 300 यूनिट्स जो है वो एक्सेप्टेबल है. कि चलो ठीक है, हमने सोचा 5000 यूनिट का, 300 यूनिट तो शॉर्ट सही है, 500 क्यों हुआ, यानी 200 यूनिट अभी भी हम पीछे हैं, वो क्यों है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. सो द एनालाइजिंग डेविएशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस. अंडर दिस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड determine the acceptable range of deviation in all the operational areas. अब इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए the following point should be kept in mind while analyzing deviation. The first is critical point control.
What is this? According to this, should be first for key result areas which are critical to success of the organization. It is because it is not possible to keep a check on all the activity of the enterprise. Yes, it is a very important line for the controlling. It is not possible to keep check on all the activities of the enterprise. आप enterprises के हर काम को control नहीं कर सकते, हर काम को check नहीं कर सकते. Therefore, if anything goes wrong at the critical point or key areas, immediate action should be taken. Means first of all, जब भी हम डेविएशन को एनालाइज करें तो पहले हमारे मन में ये आना चाहिए कि की एरियाज़ क्या हैं. ये की एरियाज़ का मतलब होता है वो एरिया जिससे हमें लॉस ज़्यादा हो सकता है, जिससे हमारे एफिशिएंसी पे ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है. जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट इज़ मोर क्रिटिकल दैन द 20% इंक्रीज इन द पोस्टल चार्जेस. हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी वर्क कर रहे हैं और हमने देखा कि आफ्टर 1 मंथ में लेबर कॉस्ट जो था 5% से इंक्रीज़ हो गया और हमारा पोस्टल चार्ज 20% से इंक्रीज़ हो गया. तो हम किसको फोकस करेंगे, किस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे? हमारा की रिज़ल्ट एरिया क्या है? हमारा की रिज़ल्ट एरिया होगा 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट विल अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी. यानी जब हम डेविएशन को एनालाइज करेंगे तो पहली बात हम ये डिटरमाइन करेंगे द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन. एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन मतलब ड्यू टू द वेरियस एडवर्स सिचुएशन वी फाइंड आउट द एक्सेप्टेबल डेविएशन. मीन्स कितना हम शॉर्टेज कर सकते हैं. अगर हमने सोचा कि 5000 यूनिट प्रोड्यूस करें, हमने बनाया 4500, 500 कम चल रहे हैं तो 500 में मान लिया कि चलो 300 तो एक्सेप्टेबल है. भाई इतनी सारी प्रॉब्लम आई तो भी हम लोगों ने 4500 यूनिट प्रोड्यूस किया, लेकिन करना कितना चाहिए था? 300 कम करते तो चलता, आप 500 कम कर दिया. यानी जो 200 यूनिट प्रोड्यूस कम हुआ है उसको हमें फोकस करना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात ये कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. जब हम कंट्रोलिंग इस्टेब्लिश करें तो किस एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हमें बताता है कि फर्स्टली वी फोकस ऑन दोज एरियाज विच आर क्रिटिकल इन नेचर एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज की रिजल्ट एरिया. बिकॉज in the management it is not possible to keep a check on all the activities of the enterprises. अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें सबसे पहले क्रिटिकल एरियाज़ पे कंट्रोलिंग इस्टेब्लिश करना चाहिए, बाकी चीज़ों पे बाद में करना चाहिए. तो कंट्रोलिंग में बता रहा है कि डेविएशन को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्टेबल डेविएशन कैलकुलेट करना चाहिए कि जितना डेविएशन आया उसमें से कितना एक्सेप्टेबल है, कितना नॉन एक्सेप्टेबल है. जैसे 500 रेंज डेविएशन आया था जिसमें से मैंने कहा एक एग्जांपल ये कि 300 एक्सेप्टेबल है, 200 एक्सेप्टेबल नहीं है. 300 मतलब 300 चलता है क्योंकि इतनी सारी सिचुएशन है. 200 के लिए आप कंट्रोलिंग करोगे, 200 के लिए रीज़न पता करोगे. दूसरी बात बता रहा है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में कि अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है या आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीज़न. सो अगर मान लीजिए लेबर कॉस्ट में 5% इंक्रीजमेंट आता है और पोस्टल चार्जेस में 20% का इंक्रीजमेंट आता है, तो आप रेट ऑफ परसेंटेज में देखोगे तो ज़्यादा किसका है? पोस्टल चार्जेस का. लेकिन ये वो आपके बिजनेस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा. इफेक्ट क्या करेगा? लेबर कॉस्ट. वहीं दूसरा रूल है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दैट इज़ MBE. मैनेजमेंट एक्सेप्शन को बोलते हैं अपवाद प्रबंधन, अपवाद का प्रबंधन. देखिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इट सजेस्ट दैट इफ मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग ही मे एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग. अगर मैनेजर सब कुछ कंट्रोल करने लगेगा तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा. नहीं तो मैं कहता हूँ, क्या आप बिजनेस की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं. क्या सारी चीज़ें आपकी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चल सकती है? नो. सो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू नोट अबाउट इट कि यू शुड फॉलो द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स thus in this context it is stated that managers should first handle the deviation which are beyond their specific range and he should not waste his time and energy in finding solution of minor deviation.
that is 2% in labor cost is acceptable ranges of deviation if the labor cost exceed beyond 2% of immediate action should be taken. ओके यानी कि सपोज हमने अभी इससे पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हमें पता चला कि 5% लेबर कॉस्ट जो थी वो इंक्रीज़ हो रही है और 20% पोस्टल चार्ज। तो की रिजल्ट एरिया पे हमें फोकस करना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल था क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, उससे हमें पता चला किस एरिया पे हमें फोकस करना चाहिए, लेबर कॉस्ट पे। अब लेबर कॉस्ट में 5% इंक्रीजमेंट हुआ, क्यों सर पकड़े हो? साल भर का समय बीता है, क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है सर? क्या लेबर की इनकम नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए सर। कितनी परसेंट बढ़ गई? 5% बढ़ गई। जहाँ 100 रुपये देते थे वहाँ 105 रुपये दे रहे हो। हाँ सर। कितना एक्सेप्ट कर सकते हो? 102 रुपये, यानी 2%। मीन्स आपने एक्सेप्टेबल कितना कर लिया, यही तो है। डेविएशन कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो? 5% तक का नहीं, लेकिन आप 2% तक का कर सकते हो। ये 3% और क्यों बढ़ गया, इस पे कंट्रोल करो, इस पे चेकिंग करो। सो अगर हम आपको पूरा मिक्सअप कराएं एनालाइजिंग डेविएशन में, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल अभी बताता हूँ दोनों साइड। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हो और एट द एंड ऑफ 3rd मंथ आपने एक मीटिंग बुलाई और लोगों से रिपोर्ट मांगा कि आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, मतलब आप अपना रिपोर्ट सबमिट करिए। यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट। प्रोडक्शन मैनेजर्स सबमिट देयर रिपोर्ट, लेबर कॉस्ट 5% से इंक्रीज़ हो गया है। सो द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, सेल प्राइस बढ़नी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर ने ओनर को कहा, ओनर यहाँ बैठा हुआ है एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द रिप्लाई। वहीं दूसरी ओर अकाउंटेंट या फिर कह सकते हो ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे, एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने बताया कि 20% पोस्टल चार्ज इंक्रीज़ हो गया। ओके, सब जब ये बैठा यहाँ मैनेजर, वो अब सोचेगा कि पहले हमारा फोकस किस पे होना चाहिए। तो वो तो भाई मैनेजर है, उसने ये नियम पढ़ा हुआ है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या करता है कि अगर आपके सामने कई सारी एडवर्स सिचुएशन आ जाए तो आप कंट्रोलिंग सबसे पहले कहाँ एस्टेब्लिश करोगे? वी फोकस द कंट्रोल सिस्टम ऑन द की रिजल्ट एरिया of the organization because it is most critical to the success of organization and it affects the profitability of the business. So administration ने कहा 20% पोस्टल चार्ज इंक्रीज हो गया है, तो वो पोस्टल चार्ज पे ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। ही फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन मैनेजर बिकॉज लेबर कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाई 5%। यानी विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल we take the help which kind of areas is most important to control immediately, because अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले 3 महीने में हमें और ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ सकता है। ओके, अब रही बात दूसरी बात, यानी अब मैनेजर है, अब मैनेजर ने एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़ को कहा कि जाइए, ठीक है आपकी प्रॉब्लम मैंने सुन ली, इस पर मैं बात करूँगा बाद में। अभी उसने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया पर्सनली और कहा कि लेबर कॉस्ट जो है 5% से बढ़ गया है। हाँ सर। अब वो प्रोडक्शन मैनेजर से लिस्ट मांगेगा कि रीज़न बताओ वाई लेबर कॉस्ट इंक्रीज बाई 5%। प्रोडक्शन मैनेजर ने बहुत सारे सजेशन दिए, बहुत सारे रीज़न बताए कि वाई लेबर कॉस्ट इंक्रीज बाई 5%, एंड ही इन्फॉर्म टू his boss why labor cost increased by 5%। अब ये ओनर है, इसने तो मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। हाँ सर पढ़ा हुआ है। ये जानता है कि 5% जो है लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है, वो सब कुछ तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसने जितना रीज़न पढ़ा उस रीज़न को एनालाइज करने के बाद उसने सोचा कि यार 5% कुछ ज़्यादा बढ़ गया, मुझे लगता है कि 3% ही बढ़ना चाहिए था। यानी with the help of information given by production manager, the reason why labor cost is increased by 5%
he decide, he think that labor cost will be increased by 3%. It should not be increased by 5%. सो उसने ये मान लिया कि 3% तक तो एक्सेप्टेबल है. अब वो निगोशिएबल करेगा, कहेगा 3% तक का तो हम लेबर की वेजेस बढ़ाने के लिए आपको परमिशन देते हैं, बट जो 2% और बढ़ने की बात है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे बजट में नहीं. ये उसको कहाँ से नॉलेज मिला? ये उसको नॉलेज मिला विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. यानी जब भी हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं तो फर्स्टली वी फोकस ऑन द key result area, and thereafter we focused on the second principle of deviation, that is management by exception, which says management should first handle the deviation which are beyond the specific range, and he should not waste his time and energy in finding the solution of minor deviation. अगर 3% तक का लेबर कॉस्ट बढ़ता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं अरे ठीक है इतना तो बढ़ेगा हर साल, इतना तो लेबर की वैल्यू बढ़ेगी हर साल, लेकिन 5% बढ़ गया ठीक है. यहाँ इसमें एग्जांपल में दिया 2% उसने एक्सेप्टेबल किया है. तो बेसिकली इन द समरी, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस, हम इसको समराइज़ कर देते हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि डेविएशन को एनालाइज करने के लिए फर्स्टली वी फोकस्ड ऑन द की रिजल्ट एरिया. कौन सा एरिया हमारे लिए ज़्यादा फोकस्ड है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमारे बिजनेस को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, उसकी प्रॉफिट को इफेक्ट कर सकता है. वहीं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कंट्रोलिंग बाय एक्सेप्शन, वी कैलकुलेट द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन. जैसे आपने देखा एग्जांपल में कि 5% का लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया था, लेकिन मैनेजर ने डिसाइड किया कि ठीक है 2% तक का जो लेबर कॉस्ट है वो एक्सेप्टेबल है, 2% से जितना ज़्यादा हमारा लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है. ओके, सो आई होप कि एनालाइजिंग ऑफ डेविएशन आपके लिए क्लियर हुआ होगा. इसमें हम लोग 2 प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड नंबर सेकेंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ओके, द फिफ्थ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. This is a final step in which manager takes corrective measure to bring back everything on the track in the organization. That is, according to set plans, corrections are required in key result areas which are critical to the success of the organization or in the areas where deviation go beyond the permissible limits. यानी ये जो लास्ट स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर चली गई उनको फिर बैक कर ट्रैक पे लेकर आए, और हमने जैसा भी प्लान बनाया है हमारी एक्टिविटी भी उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म. और करेक्शन आर रिक्वायर्ड इन की रिज़ल्ट एरिया, और जो करेक्शन होना चाहिए वो किस एरिया में होना चाहिए? की रिज़ल्ट एरिया में होना चाहिए. और इस एरिया में जितना डेविएशन ऊपर जा चुका है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, और इन एरियाज़ वेयर डेविएशन गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स. जैसे मैंने कहा की रिजल्ट एरिया इज़ अ लेबर कॉस्ट, एंड वेयर डेविएशन गोज बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स, लेबर कॉस्ट इंक्रीज बाई 5% बट द एक्सेप्टेबल लिमिट इज़ 2%. 2% से ज़्यादा जितना लेबर कॉस्ट क्या है उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए. द नेक्स्ट इज़ करेक्शन एक्शन में इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, hiring labor for extra time, replacement of machinery. Sometime if deviation cannot be corrected despite the best effort of manager, standard may be revised. आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं डेविएशंस में, आपने जो भी रीज़न फाइंड आउट किए हैं, जैसे अभी लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया, तो अगर आपने कहा कि 2% तक का एक्सेप्टेबल था, मैंने तो एग्जांपल में लिया था 3%, सपोज़ 3% तक एक्सेप्टेबल था, तो आप निगोशिएट करेंगे विद द लेबर. यानी आपके लिए टेकिंग करेक्टिव एक्शन क्या होगा? कंसल्ट विद द लेबर यूनियन टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट. अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? काम किसी और को दे देगा, लेबर्स को निकालेगा. भाई जाहिर सी बात है कि वो 3% से ज़्यादा लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं कर सकता. सो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो हम कंट्रोलिंग के फिफ्थ स्टेप डेट इज़ करेक्टिव टेकिंग एक्शन में लेते हैं. उसके अलावा भी अगर हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है तो मान लीजिए उसके लिए कोई रीज़न निकलता है कि एम्प्लॉयज़ ट्रेन नहीं है, तो ट्रेनिंग दे सकते हैं.
एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत है तो हम लेबर को एक्स्ट्रा टाइम के लिए हायर कर सकते हैं। मशीनरी कम है या फिर मशीनरी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो मशीनरी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर डेविएशन करेक्टेड होने के बाद भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम उसके लिए सॉल्यूशन निकाले हैं फिर भी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना चाहिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि स्टैंडर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर कंडीशन हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। सो दे आर बेसिकली 5 steps of controlling, that is setting performance standard, measurement of actual performance, comparing actual performance with standard, analyzing deviation, taking corrective action. So आज हम लोगों ने पूरे 5 स्टेप्स को डिस्कस किया। सो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक very clearly. But if you have any kind of doubt relating to this topic, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।